Hello everyone. Today we are going to discuss about the biggest announcement for student of class 10th and 12th from CBSE. So let's start. 5 जुलाई को CBSE ने ये हमको कैरिकुलम दिया था, नोटिस दिया था रिगार्डिंग द CBSE एग्जाम्स की 2021 एंड 22 के जो स्टूडेंट्स हैं वो CBSE के एग्जाम कैसे देंगे। बेसिकली जो सेकेंड वेव थी उसकी वजह से इस बार के एग्जाम मीन्स 10th और 12th के 2020 एंड 2021 के बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो उनके इंटरनल असेसमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ करके उनके एग्ज़ाम्स के मार्क्स उनको दिए जा रहे हैं, बट ये हर बार नहीं होगा। तो दे हैव tried something, they have given us a special scheme maybe for this year, for next year also, but let's see, majorly it's for this year only for now. COVID-19 pandemic caused almost all the CBSE schools to function in a virtual mode, means online classes, for most part of the academic session of 2020 and 2021. Due to extreme risks associated with the conduct of board exams during the second wave in April 21, CBSE had to cancel the class 10th and class 12 boards examination of the year 2021. And the results are to be declared on the basis of credible, reliable, flexible, varied alternative असेसमेंट पॉलिसी। बेसिकली वही चीज़ें हैं कि क्लास 10th और क्लास 12 के एग्जाम सेकेंड वेव की वजह से नहीं हो पाए, तो इसलिए हमको ऑल्टरनेटिव अपने तरीके निकालने पड़े, ऑल्टरनेटिव वेज निकालने पड़े टू गेट देम अ क्रेडिबल marks. This in turn also necessitated deliberation over alternative ways to look at the learning objectives as well as the conduct of the बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर एकेडमिक सेशन 21 एंड 22। मतलब इन्होंने इस सिचुएशन ने उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हम पहले से ही तैयार रहें, वट एवर द सिचुएशन बी, इन केस ऑफ सिचुएशन रिमेन्स द अनफीजिबल। अगर सिचुएशंस और बदतर होती हैं या नहीं सही होती हैं तो वी शुड बी ready. CBSE has also held stakeholders consultation with government schools as well as private independent schools from across the country, especially schools from the remote rural areas, and majority of them requested for the rationalization of the syllabus similarly to the last year in the view of reduced time permitted for organizing the online classes. मतलब जो रूरल एरियाज के स्कूल्स हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि आप जो थोड़ा सा सिलेबस था उसमें आप रेशनलाइजेशन कीजिए, थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस को अरेंज करवाने में बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। The board has also considered the concerns regarding the differential ability of electronic gadgets, connectivity, effectiveness on online teaching, and other socio-economic issues, especially the respect of students from the economically weaker section, those residing in the far-flung areas of the country. Means जो बच्चे इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं पा रहे, कनेक्टिविटी इशू, बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, इफेक्टिवनेस, जो टीचर का एक इंटरेक्टिव होता था, एक ऑरा होता था स्कूल में, एक काइंड ऑफ स्टूडियस एनवायरनमेंट मिलता था, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ स्टडी को डिस्टर्ब कर रही है। It revealed that the rationalization syllabus notified in 2021 was effective for schools for covering the syllabus and helped learning achievement, learning objectives in less stressful manner. आप टीचर्स थे वो भी सीख चुके हैं कैसे इस चीज़ को टैकल करना है, स्टूडेंट्स हैं वो भी सीख चुके हैं कैसे टैकल करना है, तो कहीं ना कहीं द थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बट दे आर द स्ट्रेसफुल कंडीशंस आर स्टिल देयर. In above backdrop and in line with the board's continued focus on assessing stipulated learning outcomes by making the examination competencies and core concept based, student centric, transparent, technology driven, and having advanced provision of alternative for different future scenarios, for the following schemes are introduced for the academic session for class 10th and class 12 2021-2022. बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से कि यहाँ पर दो हमने प्रॉब्लम आई और ऑल्टरनेटिव्स हमने निकाले कि इनके इंटरनल असेसमेंट्स, यहाँ का कुछ और परसेंट, यहाँ का कुछ और परसेंट करके यू जस्ट कैलकुलेट एंड गिव देम देयर रिजल्ट, बट हर साल ये चीज़ नहीं हो सकती, एक कॉम्पिटेंसी खत्म हो जाती है, एक जो अपने आप की क्रेडिबिलिटी जज करने वाली चीज़ होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो चीज़ हर साल नहीं हो सकती है. सो दे हैव taken out some schemes and special schemes regarding 2021 and 2022 batch for class 10th as well as class 12th. Academic sessions to be divided into two terms, most important two terms with approximately 50% syllabus in each term. अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि शुरू के 6, अगर 12 चैप्टर तो शुरू के 6 चैप्टर और बाद के 6 चैप्टर, ऐसे नहीं होगा, वो आपको पिक किए जाएंगे कि मे बी शुरू के 2-3 चैप्टर और बाद के 2-3 चैप्टर हो गए, तो
शुरू के 2-3, बाद के 2-3 6 और बाद में फिर और 2-3 6 उनको रैशनलाइज किया जाएगा, उनको देखा जाएगा, कॉन्सेप्चुअलाइज कौन सी चीजें मैच हो रही हैं, कौन सी चीजें थोड़ा सा डिफरेंट है, सबको पिकअप किया जाएगा फ्रॉम योर बुक। तो ऐसा नहीं कि शुरू का हाफ कर लो बाद का हाफ कर लो, वो अपने आप सिलेबस पूरा सिलेबस आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है कि टर्म 1 का सिलेबस ये है, टर्म 2 का सिलेबस ये है। The syllabus of academic session 2021-2022 will be divided into two terms by following a systematic approach by looking into interconnectivity of concepts by topics by the subject experts on the board will conduct examinations at the end of each term on the basis of bifurcated syllabus. This is done due to increase in the portability of having board conducted classes 10th and 12th examination at the end of academic sessions. बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से कि जो भी वही इंटरकनेक्टिविटी देखी जाएगी, ऐसा नहीं कि शुरू के 6 बाद के 6 चैप्टर्स में इंटरकनेक्टिविटी होगी, पहले के 2-3 ले लिए बाद के 2-3 ले लिए, तो उनसे आप उनका एक पूरा एक सिलेबस कंपाइल हो गया और वो आपको बाइफिकेट करके जल्द ही दे दिया जाएगा। The syllabus for the board examination 2021-2022 will be rationalized similarly to the last academic session to be notified in July 2021. For academic transactions, however, school will follow the curriculum and the syllabus released on the board's wide curricular नंबर एफ वट एवर एफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा डेटेड 31 मार्च 2021। मतलब इस करिकुलम में जो भी आपको सिलेबस दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग होगा, ऐसा नहीं कि कुछ बढ़ाया घटाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग होगा, उसी को ही बाइफिकेट कर दिया जाएगा, कुछ नया कुछ पुराना या फिर कुछ हटाया फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। School will also use alternative academic calendar and inputs of the NCERT on transacting curriculum। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक एकेडमिक ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर भी चलेगा कि जो भी आपका टर्म 1 टर्म 2 कैलेंडर जो भी चलेगा उसके रिगार्डिंग भी वो उस चीज़ पर ध्यान देंगे। हमारा पुराना कैलेंडर तो है कि मार्च से सेशन शुरू एंड देन अप्रैल में सेशन खत्म, बट यहाँ पर ये जो टर्म 1 एंड टर्म 2 का एकेडमिक कैलेंडर है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। Efforts will be made to make internal assessment, practicals, project work more credible and valid. Basically काइंड ऑफ लाइक पहले क्या होता था, बच्चे स्प्रिंट करते थे कि पहले अपना प्रैक्टिकल्स में मन हुआ चले गए, इंटरनल असेसमेंट को इतना ध्यान से नहीं दिया कि बोर्ड्स में तो सिर्फ मेन मार्क्स जुड़ेंगे एंड देन 2-3 महीने जम के मेहनत करते थे। लेकिन यहाँ पे यू रियली हैव टू टेक पार्ट इन मैराथन। आपको हर एक टाइम, हर एक एग्जाम में, हर एक प्रैक्टिकल में, हर एक प्रोजेक्ट में कुछ भी, क्योंकि अगर किसी भी वजह से कोई भी एग्जाम नहीं हो पाता है तो यही चीजें हैं जो आपको बाद में मार्क्स दिलवाएंगी। तो इन चीजों को भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से करना है कि these things are going to give you marks as per guidelines of moderation policy to be announced by the boards to ensure fair distribution of marks. Details of curriculum transactions. Schools will continue teaching the distance mode till the authorities permit. Schools will continue teaching in distance mode till the authorities permit in-person mode of teaching। Basically जब तक schools नहीं खुलते हैं आप online mode रखिए। Class 9th and 10th internal assessment throughout the year irrespective of term 1 and term 2 would include 3 periodic tests। Means टर्म 1 एंड टर्म 2 तो होंगे, उसके अलावा आपको कोई भी 3 पीरियोडिक टेस्ट देने हैं जो इंटरनल टेस्ट टीचर स्कूल्स में लेते रहते हैं। एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, उनके प्रैक्टिकल वर्क्स, आपका स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटी जो एएसएल होता था एंड द प्रोजेक्ट्स, तो ये सब आपके कंपाइल किए जाएंगे इन योर मार्क्स। क्लास 11th एंड 12th अगेन इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, थ्रू आउट इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म 1 एंड टर्म 2, टर्म 1 एंड टर्म 2 के अलावा भी आपके टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज होंगी, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल्स होंगे और प्रोजेक्ट्स होंगे जो आपको करने हैं। School would create a student profile on all assessment undertaken over the year and retain the evidence of digital format। जो भी आपने प्रिपेयर किया है, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो भी आपने प्रैक्टिकल्स लिखे हैं, जो भी आपका यूनिट टेस्ट है, उन सब का एक प्रूफ, आपका एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, उसमें सब अपलोड कर दिया जाएगा। CBSE will facilitate schools to upload marks of internal assessment on the CBSE IT। जो भी CBSE का अपना प्लेटफॉर्म है उस पर वो चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगी। Guidelines of internal assessment of all the subjects will also be released along the rationalized term-wise division
syllabus of session 2021 and 2022, the board would provide additional resources like sample assessment, question banks, teacher training, etc. for more reliable, valid internal assessment. बेसिकली यहाँ पर दे आर ट्रेन कि जो भी इंटरनल असेसमेंट की डिटेल्स होंगी, गाइडेंस में कैसे लिए जाएंगे, कैसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कैसे आपके प्रैक्टिकल्स होने चाहिए, कैसे आपके यूनिट टेस्ट होने चाहिए, उनकी गाइडलाइंस आएंगी। जिस तरीके से आपका सिलेबस बाइफिकेट होगा, मतलब टर्म 1 एंड टर्म 2 में बाइफिकेट होगा, वो उसकी पूरी गाइडलाइंस आई जाएंगी। एंड टीचर उसके साथ साथ, ताकि आपको, क्योंकि एक नया चीज आई है, नई स्कीम आई है, तो उसके रिगार्डिंग सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे आपको, क्वेश्चन बैंक्स भी मिलेंगे, एंड टीचर्स को इस चीज से कैसे कोऑपरेट करना है, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए उनको भी हेल्प किया जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि टर्म 1 एग्जामिनेशन में, बाबा टर्म 1 एंड टर्म 2 बोल रही हूँ, तो टर्म 1 एग्जामिनेशन में क्या होगा? एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म द ब्रॉड At the end of first term, the board will organize term 1 examination in a flexible schedule to be conducted between November-December with a window period of 4 to 8 weeks. Means वो depend करता है state to state wise, जहाँ की हालत सुधरी हुई है वो अपना जल्दी जल्दी खत्म कर ले, जहाँ की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई है, जहाँ पेंडेमिक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 8 वीक भी रख सकते हैं, लेकिन एक फ्लेक्सिबल विंडो कि इतने टाइम से इतने टाइम में आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लें। 1 से 2 महीने का टाइम दिया है आपको उसमें बोर्ड्स कंप्लीट करने, दिस टर्म 1 हैज टू बी कंप्लीटेड। डेट्स फॉर कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली, वो उसी टाइम पर जब भी जैसे भी डेट्स होंगे, जो भी क्राइटेरिया होगा उस टाइम का, उस टाइम पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, इंक्लूडिंग केस बेस्ड क्वेश्चन, उसमें केस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, देन उस पर ऑप्शंस होंगे। असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, डोंट वरी विल डू दैट, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट, आर इज ऑल्सो करेक्ट, मीन्स रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, आर इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग, एंड बोथ आर रॉन्ग। ओके, duration the test of 90 minutes and it will cover only rationalized syllabus of term 1 approximately 51। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही सिलेबस आएगा जो टर्म 1 के लिए आपको कन्फाइन किया गया है, जो भी आपको बताया गया है, टर्म 2 से कोई भी रिलेशन नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय द सीबीएसई, सीबीएसई ही इन क्वेश्चन पेपर को बनाएगा टू स्कूल्स along with the marking schemes। The exam will be conducted under the supervision of external center superintendents and ऑब्जर्वर्स अपॉइंटमेंट बाय दी सीबीएसई। अब इनके अपॉइंटमेंट्स लगाए जाएंगे कि एग्जाम स्कूल सही से करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट्स which after scanning may be directly uploaded by the CBSE portal, alternatively may be evaluated and marks obtained will be uploaded by the school on a very same day। The final direction in this regard will be conveyed to the school by examination unit of board। इस यहाँ पे क्या होगा, आपने एग्जाम दिया, एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो उसमें OMR शीट्स में 1 या 2 दिन में आपके आंसर्स निकल जाएंगे, सेम डे और द अदर डे आपके मार्क्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे। मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपके टर्म 1 की मार्क्स अपलोड आपके पोर्टफोलियो में कर दिए जाएंगे। नाउ द टर्म 2। Term 2, the year-end examination. At the end of the second term, the board will organize term 2 or year-end examination based on the rationalization syllabus of term 2 only। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जैसे फाइनल एग्जाम में क्या होता है पूरे साल का आता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। टर्म 1 का सिलेबस अलग था, टर्म 2 का सिलेबस बिल्कुल अलग होगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50% of the entire syllabus। The examination would be held around March April 2022, again 1-2 महीने का टाइम at the examination center fixed by the board। बेसिकली अभी तक ये अंदाजा लगाया जाता है कि टर्म 1 स्कूल्स में होगा, अपने स्कूल्स में होगा, एंड टर्म 2 आपका सेंटर्स पे होगा, बोथ सेंटर्स पे होगा। The papers will be of 2 hours duration, this will be of 2 hours duration and have questions of different formats। जैसे टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर्स होंगे एंड लॉन्ग आंसर्स होंगे, जैसे हमारा एक ट्रेडिशनल पीएच क्वेश्चन पेपर बनता हुआ आ रहा है। In case the situation is not conducive for normal descriptive examination, a 90-minute MCQ based will be conducted on the end of term 2 also। अगर situations ठीक नहीं होती हैं या फिर एक descriptive based question paper नहीं बना पाते हैं या any problem, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ये पेपर भी आपका MCQ based हो सकता है, but the term will be MCQ based only।
मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट द फाइनल ओवरऑल स्कोर। अब यहाँ पर टर्म 2 और टर्म 1 दोनों के मार्क्स मिलाकर आपको दे दिए जाएंगे। असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। अब डिफरेंट सिचुएशन, अभी तो था टर्म 1 कैसे, अगर सब सिचुएशन नॉर्मल रहती हैं, कोविड इतना नहीं बढ़ता है, तो फिर नॉर्मल सिचुएशन हमने पढ़ ली। टर्म 2 कैसे कंडक्ट किया जाएगा, टर्म 1 कैसे कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन अलग होती हैं, उस टाइम पर कोविड की सिचुएशन बेटर नहीं होती कई जगहों पर या ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कैसे कैसे सिचुएशंस में हमको डील करना है। First case, in case the situation of the pandemic improves and the students are able to come to school or centers are taking exams, board will conduct term 1 and term 2 examination at schools slash centers and the theory marks will be distributed equally between the two exams. यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन है कि सब कुछ एकदम ठीक है, टर्म 1 टर्म 2 दोनों अच्छे से हो गए, तो यहाँ दोनों के ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिव मार्क्स ले लिए जाएंगे, पिकअप कर लिए जाएंगे। नाउ second case क्या, in case the situation of pandemic forces complete closure of school during November December but term 2 exams are held at schools or centers। मतलब नवंबर दिसंबर में, अब जैसे थर्ड वेव का सुनने में आ रहा है, तो बाय एनी केस नवंबर दिसंबर में स्कूल बिल्कुल बंद है, कोई एग्जाम कंडक्ट करने के तरीके नहीं है, और आपका बट टर्म 2 जो एग्जाम है वो अच्छे से हो गया, मतलब उस टाइम पर जो आपके टर्म 2 था वो सही हो गया, सिचुएशंस वो बेटर है टर्म 2, मतलब मार्च अप्रैल में सिचुएशन सही थी। Term 1 MCQ based exam would be done by students online or offline from home. In this case, the weightage of this exam of the final score would be reduced. The weightage of term 2 will be increased for the declaration of the final result. अब इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं कि टर्म 1 एग्जाम कैंसिल कर देंगे, नहीं, टर्म 1 एग्जाम होगा, चाहे आप उसको रिटर्न करके टीचर्स को पीडीएफ भेजो, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाएं, बाय एनी केस टर्म 1 एग्जाम होके रहेगा। उसकी वेटेज जैसे हमने देखा 50% वेटेज थी, टर्म 1 की 50% वेटेज ली जाएगी और टर्म 2 की, मतलब इक्वल वेटेज थी दोनों की। यहाँ पर टर्म 1 के मार्क्स की वेटेज कम हो जाएगी, जो पोर्शन है वो कम लिया जाएगा वेटेज का, एंड टर्म 2 की पूरी वेटेज ली जाएगी क्योंकि टर्म 2 सही कंडीशंस में हो रहा है। The third case, in case the situation of pandemic forces complete closure of schools during March April 22 but the term 1 exams are held at schools at center। अब इसमें क्या हुआ, थर्ड केस में टर्म 1 हो रहा है, टर्म 2 नहीं हो पाया due to any reasons। Results would be based on the performance of students of term 1 के बेसिस पर, उनके इंटरनल असेसमेंट्स पर भी, मतलब प्रोजेक्ट्स और आपके इंटरनल यूटी जो भी यूनिट टेस्ट होंगे उन पर, और जो भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं, जो भी आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स हैं उन पर, इंटरनल असेसमेंट्स पर और टर्म 1 के बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। The weightage of marks of term 1 examination would be conducted by the board will increase to provide year and result candidates। अब यहाँ पे टर्म 1 मार्क्स की जो वेटेज है आपकी बढ़ गई, जो इंटरनल असेसमेंट है उनकी थोड़ी कम रहेगी, बट देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ देम, ऐसा नहीं कि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर डी पार्ट है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल, मतलब द बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 एंड टर्म 2 आर टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम होम सेशन ओनली, सेशन 21 सेशन 22, मतलब दोनों ही एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करा जाता। सिचुएशन ऐसी है कि नवंबर दिसंबर में भी सिचुएशन बहुत खराब है और आपका मार्च अप्रैल में सिचुएशन बहुत खराब है, और दोनों ही टर्म्स में एग्जाम्स होंगे, दोनों ही टर्म्स में आप घर बैठ के एग्जाम दे रहे हो, be it offline, be it online। The result would be computed on the basis of internal assessments, number 1, practicals, project work, थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1, जो भी आपने टर्म 1 में स्कोर किया था एंड जो भी आपने टर्म 2 में स्कोर किया था, टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम क्लास 10th एंड 12th, सब्जेक्ट्स to the moderation and other measures to ensure validity of reliability of assessment। मतलब अब यहाँ पे सब कुछ आपका टर्म 1, आपका टर्म 2, आपका इंटरनल असेसमेंट, आपके प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट वर्क्स, थ्योरी, सब कुछ का आपके असेसमेंट लिए जाएंगे। In the above cases, the data analysis of marks of student will be undertaken to ensure the integrity of the internal assessment and home-based exams। यहाँ पे आपके हर एक एग्जाम को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, जिसमें बताया था पोर्टफोलियो बन जाएगी और फिर उसी के बेसिस पे आपको देखा जाएगा। If you have any problem, any query in this scheme, understanding in this scheme, then you can message me on my Instagram handle. I will put the link in the description box. Thank you so much.